ماہی ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ باپ اسکول میں ٹیچر تھا، جبکہ ماں نے گھرداری سنبھال رکھی تھی۔ بڑا بھائی مزید پڑھائی کے لیے اپنے بل بوتے پر باہر کے ملک روانہ ہو گیا تھا۔ ماں باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر مشکل سے ہی صحیح ان کی ہر ضرورت کو پورا کیا تھا۔ ماہی چاہتی تھی کہ وہ کچھ بن کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے، اپنی کامیابی کی راہ خود ہموار کرنی تھی۔ امیروں کی اولاد کے چونچلے اسے زیب نہیں دیتے تھے۔ آپ خواہ اس کو مزید پڑھائی کی اجازت دے رہے ہیں، جب میں اس کی عمر میں تھی تو روحان میری گود میں تھا۔ ماحول کتنا بدل چکا تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی کہانی سننے کو ملتی تھی۔ ویسے بھی محلے کی عورتیں مرچ مسالے لگا کر ہی یونیورسٹی والی لڑکیوں کو بدنام کرتی تھیں۔ اماں کو ماہی کے آگے پڑھانے کا فیصلہ کچھ بھلا نہ لگا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 1 سال گھرداری سیکھ لے تو اچھا رشتہ دیکھ کر بات پکی کر دی جائے۔ بیگم، تب کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماہی نے کچھ بھی کہنے کو منہ نہیں کھولا تھا، کیونکہ روحان اور ابا اسے اجازت دے چکے تھے۔ اماں کو منانے کے کام میں ان دونوں کے ذمہ تھا۔ 4 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، تب تک ماہی کے رشتے آنا بند ہو گئے تو؟ سفید پوش لوگ تھے، اپنی چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانا چاہتے تھے۔ ماہی کی ماں کو ڈر تھا کہ کہیں زیادہ پڑھائی لکھائی ان کی بیٹی کو باغی نہ کر دے۔ اگر اس کے جوڑ کا رشتہ نہ ملا تو ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ آپ کب سے اللہ سے برا گمان رکھنے لگی ہیں؟ ہماری بیٹی تو اس قدر خوش بخت ہے کہ ہمارے گھر میں رونق لگا دی ہے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ ماہی نے فخر سے اپنے باپ کو دیکھا، جو اپنی بیگم کو سمجھانے کی کوشش میں تھے۔ جب آپ باپ بیٹی نے سارا فیصلہ خود لے لیا ہے تو مجھ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خفگی سے ان دونوں کو دیکھ کر اپنی پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں، آپ کی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن آپ مجھے روحان بھائی سے کم سمجھتی ہیں۔ آپ نے انہیں تو پڑھنے کے لیے باہر کے ملک جانے کی اجازت دے دی، اور مجھے اپنے شہر سے ہی تعلیم مکمل کرنے نہیں دے رہی۔ ہفتہ پہلے FSC کا رزلٹ آیا تھا۔ ماہی نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس کی تصویر اخبار کی زینت بھی بنی تھی۔ کئی نیوز چینل کے اینکر اس سے انٹرویو کر کے جا چکے تھے۔ ماہی کی ماں تو فخر سے بتا رہی تھی کہ ان کی بیٹی کیسے صبح و شام پڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے جذباتی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ شام کا کھانا تم بنایا کرو گی۔ ماہی نے فوراً سر ہلایا۔ ماہی کا یونیورسٹی جانے کا مقصد صرف کامیابی کی سیڑھی پر پاؤں رکھ کر اپنی راہ ہموار کرنا تھا۔ وہاں دوستیاں پالنے اور خود کو گمراہ کرنے کو نہیں جا رہی تھی۔ آنکھوں میں کئی میٹھے خواب سجائے، آج اسے پرسکون نیند آنی تھی۔ پہلا خواب جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ سالار کا تعلق ایک بروکن فیملی سے تھا۔ سالار کا سارا بچپن لڑائی جھگڑوں کی نظر ہو گیا تھا۔ انہی محرومیوں نے اس کے اندر ایک خلا پیدا کر دی تھی۔ اپنے اندر کی توڑ پھوڑ کو سنجیدگی کے لبادے میں چھپا چکا تھا۔ بچپن میں ایک بچے کی طرح اس کی کتنی خواہش تھی کہ اس کے والدین ہنسی خوشی زندگی گزارے۔ سالار کے والدین نے محبت کی شادی کی تھی۔ شادی کے کچھ مہینے تو بڑی محبت سے گزرے تھے۔ ان کے آنگن میں سالار کی صورت نیا پھول کھلنے والا تھا۔ سالار کے ابا دوہری شخصیت کا شکار تھے۔ ان کی اس بیماری کا علاج بر وقت نہ ہونے کے سبب دن بدن ان کی طبیعت میں بگاڑ آتا رہا تھا۔ سارا دن بزنس ڈیل کے بعد رات کو گھر آتے ہی ان کا وحشی پن شروع ہو جاتا۔ ارے عورت، اپنی بیوی کو گھر آ کر اسے ایسے ہی مخاطب کرتے تھے۔ سالار کی ماں پڑھی لکھی اور دیندار خاتون تھی۔ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آرام کریں۔ اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ہاتھ جھٹک چکی، اور یہی ان کی غلطی تھی۔ کمرے میں بیلٹ نکال کر انہیں مارنے لگے۔ تم مجھے خود کے قریب آنے سے روکو گی؟
सिकंदर साहब के इस रूप पर वो डर सहम गई थी। उनकी चीखों को सुनकर घर का कोई नौकर उनकी जान बचाने को नहीं आया था। प्लीज, हड्डियों में अब जान बाकी ना थी। 2 माह की हामला थी, अपने बच्चे के लिए तड़प उठी थी, लेकिन वो शख्स मार कर खुद दूसरे कमरे में जा चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ जब होश आया तो उन्हें रात की सारी कहानी समझ आ गई। खुद पर अफसोस करने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। मिसेस सिकंदर उन्हें कई बार समझा चुकी थी कि ये मर्ज लाइलाज नहीं है, लेकिन हर बार वो खामोश हो जाते थे। उठो बेगम, तेजी से उसे गोद में उठाए अस्पताल की दौड़ लगा दी। डॉक्टर ने जो खबर सुनाई वो किसी मौजज़े से कम नहीं थी कि उनका बेटा बच गया था। उनकी कोख में पलती औलाद को कुछ नहीं हुआ था। क्या आप अब भी अपना इलाज नहीं करवाना चाहते हैं? मिसेस सिकंदर समझ ना सकी कि आखिर को इनका खौफ क्या है। ऐसा कौन सा खौफ है जो उन्हें नॉर्मल जिंदगी गुजारने नहीं दे रहा। देखो, इस बात पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। जब लोगों को उनकी बीमारी का पता चलेगा, कितने लोग इनका मजाक बनाएंगे। उनके बिजनेस पार्टनर इनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। हम क्यों इस बात पर बहस नहीं करेंगे? मैं हर बार अपने जिस्म पर लगे जख्म तो आपको माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। सिकंदर साहब शर्मिंदगी से नज़रें झुका चुके थे। 9 महीने बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। मिसेस सिकंदर खुद को सिकंदर साहब से दूर रखने की कोशिश करती थी। उनकी ये एहतियात सिकंदर साहब की नज़रों से छुपी हुई न थी। अपनी बीवी को अपनी आगोश में लेकर सोने के आदी थे, लेकिन अब एक घर में रहते हुए उसके साए से भी महरूम हो गए थे। सालार की पैदाइश पर जैसे आंगन में खुशियां दोबारा से लौट आई थी, मिसेस सिकंदर ने भी सारी दूरियां ख़त्म करके सिकंदर को माफ़ कर दिया था। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी जीने लगे थे। सालार में दोनों की जान बसती थी। उस बच्चे की हर चीज़ का ख्याल किया जाता था, लेकिन मुर्गी की वही एक टांग। सिकंदर साहब की बीमारी की वजह से वक्त गुजरते साथ मिसेस सिकंदर और उनकी लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। उन सब में अगर कोई बिला वजह का निशाना बना था तो वो सालार ही था। एक रात उसकी आंख खुली तो अजीब शोर सा बरपा था। सिकंदर साहब गुस्से से अपनी बीवी को देख रहे थे, जो हमेशा से उनकी बीमारी को दरमियान में ले आती थी। सालार सिर्फ 3 साल का था, लेकिन ये लड़ाई उसके दिमाग के किसी कोने में महफूज हो चुकी थी। जब उसका बाप बेदर्दी से उसकी माँ को मार रहा था। तुम मुझे पागल कह रही हो? वो गुस्से से चीख उठे थे। अपना पागल कहा जाना उन्हें तिल मिलाने पर मजबूर कर चुका था। मुझे छोड़ें। दर्द की टीस उठने लगी। अब मजीद वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शादी के 4 साल यही सब तो करती आई थी। अरे कमज़र्फ औरत, तुम्हें दौलत से माला माल कर दिया, वरना तुम्हारे पास क्या था? अपने बाप की ख़राब मोटरसाइकिल पर बैठकर कॉलेज जाया करती थी। गरीब थी, लेकिन रोज़ मार खाकर नहीं सोती थी। सालार अगली सुबह अपनी माँ की टांग से लिपट कर रोता रहा, लेकिन बहुत सोच समझ कर उन्होंने सिकंदर साहब को लाइन पर लाने के लिए ये फैसला किया था। अदालत के मुआहदे के दौरान दोनों में अलैदगी हो चुकी थी। कुछ साल सालार मिसेस सिकंदर के साथ रहा था, लेकिन एक ना एक दिन उसे लौटकर सिकंदर साहब के पास आना ही पड़ा। अपने अकेलेपन में वो कई बार मिसेस सिकंदर को बातें सुना दिया करते थे। उनको वापस लाने के लिए उन्होंने सालार को अपने पास बुलवा लिया था, लेकिन उनकी ये खाम ख्याली की बात थी कि मिसेस सिकंदर वापस आएंगी। सालार की नाक पर ही गुस्सा रहता था। अब वो बचपन का डरपोक इंसान नहीं था जो चुपके से अपनी माँ को मार खाते देखता रहेगा। अब वो सिकंदर साहब की आंखों में आंखें डालकर उन्हें तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। तुम वक्त पर पहुंच गए हो? सुबह नाश्ता करके तो निकले थे ना? मिसेस सिकंदर की कॉल पर वो मुस्कुरा उठता। आपके शौहर मुझे कहाँ सुकून से नाश्ता करने देते हैं। आज ही शुरू हो गए कि यूनी में जाकर उनकी इज्जत का खास ख्याल रखना है। और मैं सिकंदर का बेटा हूँ।
मुंह बनाकर मासूमियत से अपने बाप की ऐसी शिकायत लगा रहा था जैसे उन्हें जानता ही ना हो। तुम भी इतने सीधे नहीं हो, जरूर कोई शरारत की होगी। इसको कोख में 9 महीने रखा था, अच्छे से वाकिफ थी कि वो सिकंदर को कितना तंग करता है। आप मुझे इस वक्त उस शख्स की हिमायत करती बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। उसका मूड बिगड़ गया था। सालार की नज़र में सिकंदर साहब एक ऐसे इंसान थे जो सिर्फ खुद से मोहब्बत करना चाहते थे। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज़्ज़त का ख्याल था और इसी नाम निहाद बीमारी की वजह से अपने से जुड़े रिश्तों को वो चोट पहुंचा गए थे। अच्छा, तुम नाश्ता कर लेना, वरना लंच मेरे साथ करना। मैं तुम्हारी मर्जी का खाना पकाऊंगी। माँ से बात करती तो उसका टकराव माही नाम की एक लड़की से हुआ था। वो देखने में इंतहाई मासूम थी। चेहरे को चादर से ढांपे वो काफ़ी नर्वस सी दिखाई दे रही थी। सालार जिस तबके से ताल्लुक़ रखता था, वहाँ की लड़कियों का कम ही दुपट्टे से ताल्लुक़ वास्ता पड़ता था। कहाँ जाना है? वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। माही के दिल में ख्याल आ गया कहीं वो भी उसके साथ कोई प्रैंक ना कर दे। अब तक कई लड़कियां उसे गलत रास्ता बताकर घुमा चुकी थी, लेकिन सालार उसे ठीक जगह पर छोड़ता वापस पलट गया। दोनों की ज़िंदगी में पहला टकराव काफ़ी अच्छा रहा था। सालार तो उसकी आंखों में खो ही गया था। अपनी आदत के बरखिलाफ जाकर उसने माही से काफ़ी नरम लहजे में बात की थी। मिडिल क्लास घराने से आई हुई लड़कियां अपनी जंग लड़ रही होती हैं। अपनी आज़ादी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो जंग लड़ती हैं। सालार माँ की दूरी की वजह से सिर्फ अपने बाप को मानता था। वो चाहता तो माँ के पास वापस जा सकता था, लेकिन मिसेस सिकंदर ने उन्हें अपनी कसम दे दी थी कि वो अपने बाप के साथ रहे। उसके बाप को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आवारा दोस्तों के साथ वो सारा दिन रेस लगाता था। रात को घर आने के बाद अपने बाप को ये जताना नहीं भूलता था कि उसका ये पैसा वो किन कामों में उड़ा रहा है। अब भी अपने बाप की खातिर ही वो कोठे पर आया था, लेकिन यहाँ के माहौल में अजीब सी घुटन थी। बगैर किसी औरत जात को देखे वो खामोशी से वापस पलट गया। उसके बाप के जासूस ये खबर उन तक पहुँचा चुके होंगे कि उनका बेटा एक कोठे से वापस गया है। सालार, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरी मेहनत की कमाई को किस वहशिया पे उड़ा रहे हो? सालार जो शाने बेनियाजी से बैठा अंडे से इंसाफ कर रहा था, अपने बाप की बात पर मुंह की तरफ जाता हाथ रोका, अपनी मुस्कुराहट को रोका। पैसे के मामले में वो किसी के सगे नहीं थे। सालार को उनकी इसी आदत से सख्त नफरत थी। अभी भी उसकी बास पूस करते वो जहर लग रहे थे। नहीं, आप कोई इख्तियार नहीं रखते कि मेरे मुतल्लिक किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करें। ये पैसा सिर्फ उनको एक झटका देने को उड़ा गया था, वरना सालार को औरत की ऐसी कोई कमी न थी कि वो कोठे का रुख करता। उसका बाप एक कामयाब बिजनेसमैन था, जिनके दाव पेच कभी खाली नहीं गए थे। अपने बेटे की बात पर तिल मिला कर रह गए। तुम्हारी माँ ही तुम्हें ये सब सिखा रही है। वो औरत ना तो खुद अपना घर बसा सकी और तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर रही है। सालार को अपनी माँ के यूं मुखातिब करने पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इस वक्त वो मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। गिलास पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। मेरी माँ के मुतल्लिक कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचिएगा कि मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं जिसका मैं लिहाज करूँगा। अपने बाप के लिए उसके लहजे में सिर्फ नफ़रत ही नफ़रत थी। उसके बाप को लगता था कि उनकी दौलत को देखकर बेटा उनके ताबेदार हो जाएगा। वो बस अपनी साबका बीवी को नीचा दिखाना चाहते थे। सालार उन्हें बताना चाहता था कि उसका अपने बाप के साथ रहने का फैसला खुद का नहीं, बल्कि अपनी माँ की दी गई कसम है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। बदकिस्मती से सालार अपने बाप को तीली से लगाने से बाज ना आया। उनका खून जलाने से वो खुद को रोक नहीं पाता था। सिकंदर साहब ने हंकार भरी। उन्हें ये फिक्र लाहक हो गई थी कि कहीं उन्हें नीचा दिखाने के लिए कल को वो इनकी दौलत को ही ना हथिया ले।
मैं तुम्हारा पॉकेट मनी बंद कर दूंगा। ये उनकी धमकी कुछ करामत साबित ना हुई थी। मैं आपको बता दूं कि मैं पॉकेट मनी ना मिलने पर अपने शेयर बेच दूंगा। वो दिल ही दिल में उसे गाली देने लगे। न जाने उन्हें क्या खाकर मिसेस सिकंदर ने पैदा किया था। सालार जानता था उसे काबू करने को हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी का आदी था। माही को यूनिवर्सिटी के सारे आवारा लड़के जहर लगते थे। भला अपनी दौलत की शो मारने को दुनिया खत्म हो गई थी, अपने नौकर चाकर पर भी यही जुल्म करते होंगे। खास ये कहा जाए कि माही को अमीर लोगों से चिढ़ थी, तो ये कहना गलत ना होगा। जो यूनिवर्सिटी के बाकी तालिब इल्म तंग करते हैं, पढ़ाई लिखाई में वो हमेशा से अच्छी रही थी। यहाँ आकर भी उसने मुकाबला कर लिया था। यही वजह थी कि कई लड़कियां उसे बिला वजह जलने लगी थी। अरे चिशमिश, क्लास की कुछ अमीर लड़कियां उसे चिढ़ाने के लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल करती थी, लेकिन खामोशी से उनकी बातों का जवाब दिए बगैर वो उनके पास से गुजर गई थी। ये किसी और ने देखा हो या ना हो, लेकिन सालार की नज़र उस पर टिकी हुई थी। तुम्हारा अपने मेकअप के बारे में क्या ख्याल है, जो कि नीचे अपने पकोड़े जैसा नाक छुपा रखा है? सालार की आवाज़ माही के कानों में पड़ी तो वो पलटकर उसे देखने लगी, जबकि सामने बैठी लड़कियों को बातें करने का मज़ीद मौका मिल गया था। वो तो पहले ही यही कहती थी कि ये मिडिल क्लास लड़कियां बड़ी यूनिवर्सिटियों में सिर्फ इसी वजह से दाखिला लेती हैं ताकि यहाँ लड़कों को फंसा सके। सालार अपनी बात कहते जा चुका था। माही ने फैसला कर लिया था कि अब सालार से मिलकर उसे खबरदार करेगी कि यूं किसी की हिमायत में बोलने का उसे कोई हक नहीं है। ज़बान तो माही के मुंह में भी थी, चाहती तो वो भी इन जैसी लड़कियों को जवाब दे सकती थी, लेकिन खामोशी एक बहुत बड़ा जवाब है। वो बोलकर अपने अल्फाज को इन लोगों में ज़ाया नहीं करना चाहती थी। तुम यही तो चाहती थी कि यूनिवर्सिटी का अमीर लड़का मिल जाए। तुम मुबारक हो चिशमिश, तुम कामयाब हो चुकी हो। अपनी नागन जैसी जुल्फों को झटक कर गुस्से से बोली थी। अपनी क्लास के लोगों से बेइज्जती सुनकर ऐसे लोग बर्दाश्त भी कर लेते हैं। जैसे कुछ देर पहले वो सालार के सामने कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन अपना गुस्सा माही पर उतारना उसने हक समझा था। तुम जो समझना चाहती हो समझ सकती हो। मैं तुम जैसी लड़की को कुछ भी कहने की पाबंद नहीं हूँ। उन लड़कियों को जवाब देने के बाद वो सीधा लाइब्रेरी में सालार के सामने खड़ी हो चुकी थी। वो लड़का किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता था, हमेशा से किताबों में गुम रहता था। एक दो बार उसे लड़ाई में भी देखा गया था, लेकिन माही को इन सब चीज़ों से कोई भी लेना देना नहीं था। वो सिर्फ यहाँ पढ़ने की खातिर आई थी। उसे क्या मालूम था कि ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे इस कदर बदतमीज़ होते हैं। मुझे आपसे बात करनी है। वो काफ़ी देर से माही की मौजूदगी को महसूस कर चुका था। वो नहीं जानता था कि माही में ऐसी क्या चीज़ है कि हमेशा से उसकी मौजूदगी उसे भली लगती है। आपको मेरी खातिर किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ मेरा और आपका स्कैंडल बनाया जाए। मैं जिस घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैंने बहुत मेहनत से इस यूनिवर्सिटी में अपनी सीट हासिल की है। आप मेरी मेहनत से वाकिफ़ नहीं हैं, इसीलिए कभी भी आइंदा मेरे मामलात में बोलने की गलती मत कीजिएगा। सिकंदर ने निगाह उठाकर उस लड़की को देखा था। हम स्कैंडल को सच कर दिखाएंगे। मिस हूर, क्या आप मुझसे निकाह करेंगी? माही का दिमाग सातवें आसमान को पहुंच गया। वो हमेशा से सालार को बाकी लड़कों से अलग समझती आई थी, लेकिन आज उसे लगने लगा था कि ये लड़का शायद उसकी गरीबी का मजाक बनाने की कोशिश कर रहा है। भला अमीर ख़ानदान के लड़के किसी लड़की के साथ इतना सीरियस कहाँ होते हैं? आपको मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? अगर आप ऐसी वैसी लड़की होती तो मैं कभी भी आपसे निकाह की ख्वाहिश का इजहार ना करता। मिस्टर सालार, मैं आपसे निकाह करने से इनकार करती हूँ। बेहतर है आइंदा आपका और मेरा सामना ना हो। न जाने आप अपनी दौलत दिखाकर मुझे ख़रीदना चाहते हैं। मेरी पसंद को तुम ऐसे हकीर नहीं कर सकती हो।
लहजा एकदम से गर्म हुआ। हाँ, हंकार भरकर वो जा चुकी थी, लेकिन सालार ने उसका रिश्ता रिजेक्ट करने को अपनी अना का मसला बना लिया था। सफ़ेद सूट में आंसू बहाती वो उसके सामने बैठी थी। अपनी मदद आप इसे वो अपार्टमेंट में लेकर आया था। गवाहान और मौलवी का इंतज़ाम करने के बाद उसे भी धमका कर मना ही चुका था। गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती निकाह किया गया। उसने कुछ लम्हे पहले ही सारे जुमला हुकूक इस शख्स के नाम किए थे जिससे बेपनाह नफरत करती थी। मेरी ज़ौजा बनकर कैसा लग रहा है? आंसू रुक चुके थे। उसकी कोई इल्तिजा इस जालिम के आगे काम ना आई थी। एक तेज़ बहाव सब कुछ बहा कर ले गया। न जाने जब ये हकीकत खुलेगी तो उसके वालिदैन पर कौन सी कयामत गुजरेगी। दम इस कदर घुट रहा है कि दिल करता है खुद का गला दबा दूं। सालार मुस्कुराया, शौक से। बज़ाहिर लापरवाह सा रवैया अगर उसे परवाह होती तो यूं उसके निकाह में ना आती। उफ खुदाया, बालों को पकड़े वो कोई नीम पागल लग रही थी, जो कुछ भी कर जाएगी। क्या तुम ये चाहती हो तुम्हारे वालिदैन को बता दें? माही ने उसे गौर से देखा, फिर अपना सामान उठाती तन फन करती वहां से निकल चुकी थी। जानती थी कि मुकाबिल अब उसे बुरा क्या ही कर सकता है। वैसे भी जब से जुमला हुकूक उसके नाम लिखवाए थे डर थोड़ा कम हो गया था, इज्जत का खतरा नहीं रहा था। रुको बेगम, अपने सास ससुर से तो मैं भी मिलना चाहूँगा। लेकिन माही बिल्कुल नहीं रुकी थी और उसका ख्याल था कि ऐसा करने से सालार को उसके घर का मालूम नहीं हो सकेगा। लेकिन सालार रोज़ उसके घर से दूर गाड़ी खड़ी करके आने जाने का ध्यान रखता था। उसके निकाह में आते ही वो दोबारा से खुश रहने लगा था। भाई आप यहाँ? माही हम उम्र लड़के को अपने सामने देखकर खुशी से बेकाबू हो गई। मोते से हमेशा से भाई बोलती ही आ रही थी। सोचा घर जाने के बजाय यूनिवर्सिटी में तुम्हें सरप्राइज दे दूं। खाला का बेटा था जिससे माही की बचपन से बहुत बनती थी। माही के मुताबिक वो इंसान अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने की काबिलियत रखता था। सालार ने अपनी बेगम को पहली बार यूं बच्चों की तरह एक लड़की के साथ खुश होते देखा। उसके तन बदन में आग सी लग गई। निकाह को दिन ही कितने हुए थे कि ये मोहतरमा अदब व एहतराम भी भूल चुकी थी। उसे ख्याल ना आया कि वो निकाह माही की मर्जी से हरगिज़ नहीं हुआ। मिसेस सालार, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि तुम्हारे मामले में नरमी का दामन छोड़ दूं। माही की चहकती आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। जहां वो एक गैर आदमी से गोलगप्पे खाने की फरमाइश करती, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ गई थी। मेरे साथ कांटे लगे हैं, मोहतरमा कभी नरमी से बात नहीं करती। सालार सोच चुका था निकाह के 2 बोल शायद काफ़ी नहीं है। उसे पक्का मंसूबा करना था कि दिलो दिमाग में माही के सिर्फ सालार का ही ख्याल आए। सालार सिकंदर की बीवी किसी गैर के साथ सैर करे, ये सालार की गैरत गवारा नहीं करती थी। अगर उसे वो ऐसे ही आज़ादी दे देता तो शायद वो इस निकाह को बहुत छोटा समझ बैठती। ज़बरदस्ती पकड़कर वो इसे गाड़ी में डाल चुका था। चीखना चिल्लाना किसी काम ना आया। न जाने अब वो शख्स कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहा था। बाकी सब कहाँ हैं? वो भवें सुकेड़े गुस्से से पूछ रही थी। वो लोग तो जा चुके हैं। वो उसके बराबर बैठते हुए दरवाज़ा बंद कर रहा था। माही के तासुरात मज़ीद बिगड़ गए। तो तुम यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारे ससुराल जाने के लिए। वही गंभीर नरम और अपनायत भरा लहजा और वही गहरी जज्बों से भरी निगाहें। माही को लगा दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। अब तो वो हक रखता था, कहीं उसका इस्तेमाल ही ना कर बैठे। मैं किसी भी किस्म की चीप गुफ्तगू सुनने के मूड में नहीं हूं। तुम्हारे मूड की परवाह कर कौन रहा है? वो दिलकशी से मुस्कुराया। धड़कनें इस कदर बेतरतीब हुई कि वो घबरा कर पलटी और जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने चाबी से गाड़ी लॉक कर दी। गाड़ी खोलो,
वो बिना रुख मोड़े ऊंची आवाज में चिल्लाई, ये ससुराल जाकर ही खुलेगा। वो मुसलसल चीख चिल्ला रही थी, क्या तुम अपने मुंह को कुछ वक्त के लिए बंद नहीं कर सकती हो? ऐसे कह रहा था जैसे हंसी खुशी कहे जा रहे हो। देखो अब तो मुझे कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हो। सालार हर बार अपनी मर्जी करके माही का दिल मजीद बुरा कर देता था। अब इस शख्स की मौजूदगी से भी नफरत थी। दिल में दुआ की कि कहीं मर जाए। घर वाले न जाने क्या सोच रहे होंगे कि अब तक वो घर क्यों नहीं पहुंची। शौहर में से ही कीड़े निकालना। दूसरों पर तो मिसेस सालार काफ़ी नजरें करम करती हैं। उसके गहरे तंज पर जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। गाड़ी एक आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी थी। ज़बरदस्ती उसे अपने करीब करता उसे बावर करवाने लगा कि उसे यहाँ आकर कैसे जाहिर करना है। अपनी मम्मा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, इसीलिए उनके सामने ज़्यादा सच बोलने की ज़रूरत नहीं, वरना आज की रात घर के बजाय तुम मेरे बिस्तर पर गुजारोगी। माही की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। सामने खड़ा शख्स पागल था, जो कहता था वो कर गुजरता था। हाथ हाथों में लिए दोनों अंदर की जानिब बढ़े। सालार की माँ बेयकीनी से इसके पहलू में खड़ी मुरझाई सी लड़की को देख रही थी। उन्हें समझने में देर ना लगी कि वो लड़की कौन है। माही गम गुस्से की कैफियत में फर्श पर नजरें गाड़े खड़ी थी। उसे सालार के साए से भी नफरत महसूस हो रही थी। अपने माँ बाप का बेबस चेहरा जब उसकी निगाहों के सामने से गुजरता था, तब तब उसकी नफरत का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा था। बेटा इधर आओ। सालार के चुटकी काटने पर सिसकी मुंह में दबाती छोटे छोटे कदम उठाकर उनके पहलू में जा बैठी। मेरे बेटे ने आपके साथ जबरदस्ती तो नहीं की? सालार उसको इतना डरा धमका कर लाया था कि उस वक्त शान बेनियाजी से बैठकर सास बहू को देखने लगा। नहीं, यकलफ्जी जवाब सालार की माँ को मुतमईन ना कर सका। सालार ने गुस्से से इस मीसनी लड़की को देखा जो हमेशा इसकी अना पर वार करती आई थी। मामा, आपकी बहू ज़रा कमगो है, आपके साथ घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा। सालार की बात पर उन्होंने ऐसी नज़रों से उसे देखा कि वो बालों में हाथ फेर कर रह गया। माही बेटा, मैं सालार से पहले अब आपकी माँ हूँ। अगर आप कुछ भी मुझे बताना चाहें तो बता सकती हैं, मुझसे कुछ मत छुपाइएगा। सालार के बरक्स उसकी माँ का लहजा शफीक था। माही को सालार और उससे जुड़े हर रिश्ते से नफरत हो रही थी। वो अपने एहतराम की वजह से खामोश थी, वरना शायद उन्हें उस वक्त काफ़ी बातें सुना चुकी होती। कुछ देर उनसे बातें करने के बाद शायद सालार को उस पर तरस आ गया, तभी वो उसे घर के पास छोड़कर जा चुका था। रोज़ अपने घर वालों से झूठ बोलते बोलते वो थक चुकी थी। दिल ही दिल में सालार को गालियों से नवाजने लगी। कुछ दिन इन दोनों का सामना नहीं हुआ था। माही ने भी दिल में ख्याल नहीं लाया कि न जाने वो कहाँ गायब हो गया है, लेकिन अगली शाम को उसके घर में धमाके हुए थे। वो अपने वालिदैन के साथ माही के घर में मौजूद था। माही की वालदा तो उनकी खातिर तवाज़ो करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उसके अब्बा से मालूम हुआ था जिस स्कूल में वो नौकरी कर रहे हैं वो इसी मैडम का है। पहली मुलाकात घर वालों के दरमियान काफ़ी अच्छी रही थी। सालार ने उसे सख्ती से मना किया था कि अगर उसने घर वालों के दरमियान कोई भी मुश्किल पैदा करने की कोशिश की तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। वैसे तो ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन आप तो मुझे और सालार को काफ़ी अरसे से जानते हैं। मैं चाहती हूँ इस हफ्ते सादगी से निकाह और रुखसती हो जाए। माही के वालिदैन ये सब सुनकर ज़रा परेशान हो गए। बेटी की शादी के लिए सफ़ेद पोश लोगों को काफ़ी इंतज़ामात करने पड़ते हैं, लेकिन सालार की वालदा ने यह कहकर मना करवा दिया कि उन्हें किसी किस्म का कोई जहेज़ नहीं चाहिए। आखिर हफ्ते बाद वो घड़ी आ गई जिसका शिद्दत से इंतज़ार था। घर वालों की दुआओं के साथ वो सालार सिकंदर के घर रुखसत हो गई थी।
इस बार उसे सिकंदर साहब के बंगले में ले जाया गया था। बहू के ऊपर से सिकंदर साहब पैसे वारते बहू से बोले, चलो इस गधे ने कोई एक फैसला तो अच्छा लिया। सालार के अब्बा चाहते तो सालार की शादी अपनी क्लास की लड़की से करवा सकते थे, लेकिन ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती, इसीलिए उन्हें माही हर लिहाज से ठीक लगी थी। डैड, सालार ने अपने बाप को इल्तिजा की कि आज के दिन माही के सामने वो कोई भी बहस नहीं करना चाहता। वो भला बाप बेटे की लड़ाई में क्या ही कह सकती थी। यहाँ उसे अपना आप बहुत अजनबी मालूम हुआ था। घर वालों की इज्जत बचाने के लिए उसने हाँ की थी। कमरे में आते ही वो उसको अपनी गिरफ्त में ले चुका था। माही की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, जिसे बेदर्दी से पीछे की जानिब धकेल चुकी थी। मेरे माँ बाप के सामने तुम्हारा ये बेजार रवैया अगर मैंने दोबारा देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही ने तंजिया निगाहों से उसे देखा। क्यों? अपने माँ बाप की परेशानी तुमसे देखी नहीं जा रही? किस बात का खौफ है कि कहीं मैं उन्हें सच ना बता दूं? उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। माही को अब किसी चीज का डर नहीं रहा था। ये शख्स उसके साथ जितना बुरा कर सकता था कर चुका था। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती हो। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? सालार उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। ये लड़की उसके साथ खेलने की कोशिश में थी। दोनों एक दूसरे से नजरें मिलाए खड़े थे। एक की आंखों में मोहब्बत थी तो दूसरे की आंखों में सिवाय नफरत के कोई जज्बा दिखाई नहीं दे रहा था। किसी के मरने का सोग भी 3 दिन का होता है। तुम हमारी शादी का सोग हफ्ते से मना रही हो। कब ये सोग खत्म होगा? अगर बात कुछ और होती तो उसके सदके वारी जाता। ये तो अब सारी जिंदगी का रोग है। रोग को अभी जश्न में बदल देते हैं। उसकी कमर से हाथ गुजारता बेड पर अपने साथ गिरा चुका था। अपने दरमियान के फासले समेटकर उसकी सांसों में रस घोलने लगा। माही तो अगले का लाए अमल सोचकर ही कांपने लगी थी। प्लीज दूर हटो। सालार तो उसके करीब आकर अपने होश गंवा बैठा था। तेजी से दूर होता कमरे से बाहर निकल गया। सालार सिकंदर अपनी बीवी की रूह पर जबरदस्ती छाप छोड़ने के हक में नहीं था। अगर वो यहाँ 2 पल भी मजीद रुकता तो खुद पर इख्तियार खो बैठता। उन दोनों को एक घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया है। माही की जिंदगी रुक सी गई थी। उस हंगामे के बाद उसका यूनिवर्सिटी जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। सालार जैसे उसे निकाह के बाद भूल ही बैठा था। सुबह उसके उठने से पहले गायब हो जाता और रात को लेट आता था। माही को भी उससे गर्ज न थी, लेकिन काफ़ी ताज्जुब की बात थी कि सालार के वालिदैन अलग अलग रहते हैं। बेटा, अब काफ़ी छुट्टियां हो चुकी हैं। अगर आप चाहो तो दोबारा से यूनिवर्सिटी जा सकती हो। माही को समझ न आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। सालार भी आज वहाँ मौजूद था, लेकिन ऐसे बैठा था जैसे मौजूद ही ना हो। मैं आगे पढ़कर क्या करूँगी? ये बोलते हुए उसके दिल पर क्या गुजरी थी ये वही जानती थी। सालार ने चौंक कर उसे देखा। अरे बेटा, ये क्या बात कर दी? नस्ल को संवारने के लिए एक औरत का भी पढ़ा लिखा होना उतना ही ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि आप एक खुद मुख्तार लड़की बने। सिकंदर साहब की नज़रों से कुछ भी मुख्फी नहीं था, लेकिन अगर वो खामोश थे तो इसमें कोई मसलहत थी। सालार बहू और ससुर को यूं ही छोड़ता खुद अपनी यूनिवर्सिटी जा चुका था। वो जानता था कि वापस आने पर सिकंदर साहब से ज़रूर उसकी क्लास लगेगी। वो दुनिया वालों को बेवकूफ़ बना सकता था, लेकिन अपने वालिदैन को बेवकूफ़ बनाना उसके हाथ में नहीं था। और दोनों इस कदर चालाक थे कि उसकी हर झूठी बात को पकड़ लिया करते थे। अंकल, आपसे एक बात पूछूं? वो अक्सर नोट करती थी कि सालार अपने बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं रखता जैसा एक बच्चे को बाप के साथ रखना चाहिए।
وہ ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر جاتا تھا، لیکن سکندر صاحب نے کبھی اسے کوئی بات نہیں سنائی۔ تم ایک چھوڑو 100 باتیں پوچھو، اب تو ہماری بیٹی کی ہم سے گہری دوستی ہو گئی ہے۔ ان کا لاڈلا سپوٹ تو بہو کو لا کر گم ہو گیا تھا، وہ بیچارے اپنی بہو کی خاطر جلدی گھر آ جاتے تھے۔ آپ اور آنٹی الگ کیوں رہتے ہیں؟ سکندر صاحب کافی دیر خاموش رہے۔ ماہی کو لگا اس نے جیسے کوئی غلط سوال کر دیا ہو۔ کسی کی ذاتیات پر سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ بھی کتنے شرمندہ ہو چکے ہوں گے۔ سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی پرسنل سوال کر لیا ہے۔ نہیں بچے، اتنا کہہ کر وہ اسے ساری رودات سنانے لگے کہ ان کے ساتھ کیا مسائل تھے۔ سکندر صاحب کو اپنی غلطی کا احساس تو اسی دن ہو گیا تھا جب مسز سکندر نے ان سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ سنایا تھا۔ وہ چاہتے تو اپنی انا کو چھوڑ کر علاج کروانا شروع کر سکتے تھے۔ مسز سکندر نے واپسی کی یہی شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنا علاج نہیں کروا لیتے وہ اس شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گی۔ اچھی خاصی دولت کو لات مار کر انہوں نے ایک نجی ادارے میں ملازمت کر کے اپنی زندگی کا پہیہ گھمایا تھا۔ مجھے تمہاری ساس سے بے حد محبت ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کسی عورت کو وہ مقام نہیں دے پایا تھا، ورنہ کئی لڑکیوں نے خود میری جانب ہاتھ بڑھائے تھے۔ ماہی افسوس سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جن کو زندگی کے آخری حصے میں اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ میں نے سالار کی ماں کی علیحدگی کے بعد اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ بات اسے بتانے ہر بار انا آڑے آ جاتی تھی۔ سچ ہی کہتے ہیں، جن رشتوں میں انا آڑے آ جائے وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آنٹی آج بھی آپ کی منتظر ہیں۔ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو باقی کے زندگی کے پل آپ کو آنٹی کی سنگت میں گزارنے چاہیے، لیکن وہ مجھے معاف بھی تو کر دے۔ سالار کسی صورت اپنی ماں کو واپس آنے نہیں دے گا۔ ماہی کو سالار پر غصہ آیا تھا۔ خود تو جیسے ایک جینٹل مین تھا نا، جو دوسروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کون ہوتا ہے آپ کے اور آنٹی کے معاملے میں بولنے والا؟ غصے میں کہہ تو چکی تھی، لیکن جب سکندر صاحب کو حیران دیکھا تو دانتوں تلے زبان لی۔ مطلب آپ کو خود جا کر آنٹی سے معاملہ حل کروانا چاہیے۔ آپ اپنے حصے کی سزا کاٹ چکے ہیں۔ نرمی سے اب ٹریک پر آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو سچائی کا علم ہو۔ سالار کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو روک دے۔ ہماری اس لڑائی میں اس کا بچپن تباہ ہوا ہے۔ میں تمہاری شادی کی حقیقت کو جانتا ہوں کہ اس نے کس طرح زبردستی تم سے شادی کی ہے، لیکن اس میں اس کا نہیں، ہمارا قصور ہے کہ ہم اسے بچپن میں وہ پیار نہ دے سکے۔ بڑے آرام سے اپنی بہو پر بجلی گرا چکے تھے۔ اس کا مطلب تھا وہ روز اول سے سب ڈراموں سے واقف تھے۔ آپ جانتے تھے؟ بھلا وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ ہاں، میں جانتا ہوں، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کی تربیت مسز سکندر نے کی ہے، وہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں دے گا۔ انکل، محبت کرنے والوں کو ایسی تکلیف نہیں دی جاتی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی زبردستی ہوتی ہے۔ تم کھلے دل سے ایک بار اس کی اس غلطی کو معاف کر کے دیکھو تو اس کی کئی اچھائیاں بھی سامنے آئیں گی۔ اس نے تمہاری عزت خراب کرنے کے بجائے بڑی سمجھداری سے ہم دونوں کو تمہارے والدین کے گھر لے کر گیا۔ ان کے سامنے تمہارا ہاتھ مانگا۔ اگر وہ تم سے زبردستی نکاح نہ کرتا تو تم شاید اس دن اس کے رشتے کے لیے ہاں بھی نہ کرتی۔ مسکراتے ہوئے وہ آئینہ دکھا چکے تھے۔ سالار کی غلطی زیادہ تھی، لیکن ماہی نے اس کے نرم رویے اور لہجے کو اتنا چیلنج کیا تھا کہ وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ ماہی کے دل میں بدگمانی نے جگا لی کہ وہ تو اس کے سسر ہیں، وہ بھلا اپنے بیٹے کے بجائے بہو کا ساتھ کیوں دیں گے؟ اگر اس کی جگہ ان کی اصل بیٹی ہوتی تو آج
ان کا موقف بدل چکا ہوتا۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ماہی کی بدولت ہی مسز سکندر اس گھر میں واپس آ چکی تھی۔ سکندر صاحب نے خود ہاتھ جوڑ کر اپنی پرانی ہر غلطی کی ان سے اور سالار سے معافی مانگی تھی۔ اپنی ماں کی خاطر وہ اپنے باپ کو معاف کر چکا تھا۔ تم مجھے اگنور کیسے کر سکتی ہو؟ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی۔ گھر کی دعوت میں اسے ہر بندے کا خیال تھا، لیکن سکندر سے پوچھا تک نہیں تھا۔ میں آپ کے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہوں جو آپ کو میرا اگنور کرنا برداشت نہیں ہو رہا۔ ساس سسر کے ملنے پر آج بہت خوش تھی، اسی لیے سالار سے کوئی لڑائی کر کے نہیں سونا چاہتی تھی۔ سالار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس بدگمان لڑکی کو دیکھا جو ہمیشہ سے اس کی نگاہوں کو اگنور کرتی آئی تھی۔ تم سمجھنا نہیں چاہتی ہو یا سمجھ کر بھی اگنور کر رہی ہو؟ درمیان کے فاصلے کو مٹا کر بالکل قریب آ چکا تھا۔ دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ لڑکی پہلے دن سے اسے بہت مختلف لگی تھی۔ تمہاری محبت کی وجہ سے اس گھر کے پنجرے میں قید ہو گئی ہوں، اپنے خواب اور تعلیم کو ادھورا چھوڑ چکی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر تمہارے خواب پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سالار نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اتنے دن کا لاوا جو ماہی کے اندر ہی ابل رہا تھا وہ یکدم ہی سے پھٹ چکا تھا۔ اس کے سینے میں لگ کر اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ سالار نے اسے خاموش نہ کروایا بلکہ دل بھر کر رونے دیا تھا تاکہ وہ اپنے غبار کو نکال سکے۔ تم ستمگر ہو، جیسا بھی ہوں صرف تمہارا ہوں۔ اپنے حصار کو تنگ کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سالار کی محبت اور عنایت پر ماہی کا سخت دل پگھل چکا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے اس حقیقت کو قبول کرنا ہی تھا کہ سالار اس کا شوہر ہے۔ مرد کو اتنا ہی آزمانا چاہیے جہاں تک اس کی برداشت ہو، ایک حد سے زیادہ آزمانے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ماہی نے عقل مندی سے اپنی ضد کو پسے پش ڈال کر یہ فیصلہ کیا تھا۔